Today we are again live with new topic with new guest और आज हम आपको बड़ी स्पेशल गेस्ट जो हैं उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे और let me introduce or give his brief. Here we have today Mr. Shubhrato Saha is with us. It's a great pleasure for me to introduce our speaker who is going to talk about performance management system. This is a subject in which we should all be deeply interested. Our guest, Mr. Shubhrato Saha, possesses more than 25 years of strategic leadership and senior human resources experience. He specializes in the area of building leadership pipelines, performance management, competency mapping and frameworks, HR strategy design and execution, industrial relation advisory, and compliance and recruitment services as well. He is founder of Blue Pebbles HR and a certified coach. And today he will share with us his views on performance management system. Viewers, please join me in welcoming Mr. Shubhrato Saha. Mr. Shubhrato Saha, welcome to the show. Thank you so much. Good evening, everybody, and it's my pleasure and an honor to be doing this session with all of you. I thank Mr. Navid Raja for asking me to come and share whatever little I have learned over the last 25 years. I look forward to a very interesting session. I will try to share my experience, and if you have any questions, we will try to answer at the end of the session. And even there is a need of conducting one or more session, we can manage. I have requested Mr. Shubhrato Saha to come again with continuity of this session and with new topics even. And in future, this is a news. We will have a lot more learning opportunities with Mr. Shubhrato Saha. Sure. After the introduction, I think we should directly proceed towards presentation so that we have a detailed presentation which Mr. Shubhrato Saha has prepared for us for our learning purposes. And I don't want to waste any moment. With permission of Mr. Shubhrato Saha, may I proceed for presenting Sure. slides? Okay. Sure. Thanks. Thank you for the nice introduction too. This was really well deserved. Not we can say. Okay, your intro was truly what you have done and what I thought to share with my audience. I think presentation is visible to everyone. No. Mr. Shubhrato, can you confirm, please? No, presentation is not visible. Okay. Mine and your window is coming. In smaller size? Yeah, in the middle. Okay, still in the middle. Let me check the connectivity again. I will send you a screenshot. Not an issue. No, I have yes, seen the problem. I hope now it's visible. Yes. So, sir, please start. Now, mic is handed over to you. Okay. Thank you. Welcome all of you. And I have to speak in English, or do I need to speak in Hindi to some extent? What is the preferred mode of communication? Yes, I think mixed mode of communication will be more suitable, and we will also listen some Urdu or Hindi words and some Sanskrit because and I forgot to share with my audience that you are from Mumbai, India, and
we would like to listen some words of Hindi and Sanskrit from your side. Please proceed in multi-language, sir. ओके, आई ट्राई माय बेस्ट. नॉर्मली मैं अंग्रेजी में ही करता हूँ, इसलिए शायद Okay. कहीं अटक गया तो मैं अंग्रेजी में बोलूँगा. Okay, कोशिश no problem. करूंगा हिंदी में जहाँ तक हो सकते. उर्दू मुझे आती नहीं है, हिंदी में मैं बात करने की कोशिश करूँगा. Okay. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. ओके, ये ऊपर आप देखेंगे सेशन 1 है. दैट्स क्लरिकल एरर ऑन माय बिहाफ. वी विल, ये जो सेशन है इसमें हम ये 6 चीज कवर करने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट टच करेंगे. बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, आई विल माय अंडरस्टैंडिंग मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा आप सबके साथ. जो 6 चीजें हैं वो, एक तो है हम सब जगह परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते हैं, पर कहाँ तक सक्सीड होते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है हम एचआर प्रोफेशनल के लिए. ये हमारा कोर है. परफॉर्मेंस, लोगों का परफॉर्मेंस हमारा कोर है. हम कहाँ तक ये सक्सीड करते हैं या इसमें सफल होते हैं, ये हमें पहले देखना पड़ेगा. और जो डेटा है, इंडिया में डेटा क्या बोलती है वो हम देखेंगे. एलिमेंट्स ऑफ सक्सेसफुल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, फीडबैक एंड लर्निंग गोल्स. ये होते क्या? गोल सेटिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. जो एक चीज हमको समझना है, और ये मुझे समझने में काफी समय निकला है मेरा. हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में नॉर्मली लोगों के जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करते हैं. नाउ दैट इज करेक्ट, बट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का जो सबसे बड़ा काम है वो है ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करना. ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के पैरामीटर कहाँ तक हम फुलफिल कर रहे हैं वो मेजर करना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे बड़ा काम. ओके, अगर हम वो नहीं करेंगे तो होगा ये कि लोग अपना परफॉर्म करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन अपना परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाएगी. तो वो अगर हमें करना है तो हमको ये दोनों काम करने पड़ेंगे. पहले ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स डिसाइड करने पड़ेंगे, फिर उसको लोगों के पास कैस्केड करना पड़ेगा और उसको मॉनिटर करना पड़ेगा कि कहाँ तक लोगों का परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस मैच कर रहा है. नेक्स्ट है, एक बार ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जान गए तो फिर ट्रांसलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स टू इंडिविजुअल गोल्स वो कैसे किया जाता है. नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ सेटिंग चैलेंजिंग एंड मोटिवेशन गोल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग. सो इनिशियली हम गोल्स पे फोकस करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. एक बार गोल्स अगर हम सेट कर सकते हैं, देन आवर टास्क ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग बिकमिंग मच इजियर. नेक्स्ट स्लाइड. Okay. रिसर्च ये दिखाता है, सर्वेज एंड रिसर्च, कि लेस देन 10% ऑफ स्ट्रैटेजीज आर इफेक्टिवली फॉर्मुलेटेड एंड इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड. यानी हम जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्ट्रैटेजी रहता है कि कैसे बिजनेस लेंगे, कैसे बिजनेस बढ़ाएंगे, कैसे प्रॉफिट लेंगे, किस तरह से हम अपना प्राइसिंग करेंगे. दीज आर ऑल स्ट्रैटेजीज. लेस देन 10% ऑफ स्ट्रैटेजीज आर फॉर्मुलेटेड करेक्टली. ये जानना बहुत, ये समझना बहुत जरूरी है. इसका मतलब ये निकलता है कि अगर at the very initial stage 90% of the strategies that we have और उससे जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हम डिराइव करते हैं, that are going to fail. क्यों? क्योंकि हमने ये स्ट्रैटेजी हम ये बराबर कर नहीं पाएंगे. तो ये समझना बहुत जरूरी है. हमारा चैलेंज यहीं से चालू होता है when it comes to performance management system. अगर हम, it is like, अगर हमने अपना स्ट्रैटेजी बराबर नहीं किया, it is like operation successful and patient died. क्योंकि होगा क्या, गलत स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जो होना चाहिए था
उस पर काम नहीं करेंगे और एट द एंड ऑर्गेनाइजेशन विल गो इनटू ट्रबल. सो फर्स्ट हमको अपना स्ट्रैटेजी बराबर करना पड़ेगा. So यहाँ and when we talk of strategy, we are talking of business. तो HR को business leaders के साथ बहुत closely align करना पड़ेगा, बहुत closely उनसे बात करना पड़ेगा और strategy समझना पड़ेगा कि strategy क्या है और ये strategy का क्या goal निकल सकता है. We have to understand. I'll give you a simple example, and it is a internationally recognized example. अगर आप माइक्रोसॉफ्ट आप सब जानते हो, आप सब माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज आप यूज करते हो, एप्पल को भी आप सब जानते हो, ठीक है. माइक्रोसॉफ्ट का जो गोल था टिल लास्ट 10 years वो क्या था? हर डेस्कटॉप, हर टेबल पे एक डेस्कटॉप होना चाहिए, ठीक है. वेरी क्लियर ऑर्गेनाइजेशन विजन कि हर टेबल पे डेस्कटॉप होना चाहिए. एप्पल का क्या गोल था? एप्पल का गोल था कि हम जो भी सेक्टर में जाएंगे हम मार्केट डिस्टर्ब करेंगे बेस्ड ऑन आवर प्रोडक्ट एंड सर्विस. कैसे करेंगे? बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी. तो आप एप्पल के कोई भी प्रोडक्ट देखिए, दे हैव डिसरप्टेड टेक्नोलॉजी. मैकिंटोश कंप्यूटर लॉन्च किया, दे हैव डिसरप्टेड द टेक्नोलॉजी. द होल गेम दे चेंज्ड. उसके बाद आईपॉड लॉन्च किया म्यूजिक के लिए, दे चेंज द होल म्यूजिक इंडस्ट्री. आईफोन लॉन्च किया, फोन का मोबाइल फोन का हुलिया ही बदल दिया. ओके. सो आप उसके बाद आईपैड लॉन्च किया, द वे पीपल यूज कंप्यूटर्स हैव चेंज्ड. तो उन्होंने जो भी प्रोडक्ट लॉन्च किया है या जो भी सर्विस लॉन्च किया है, इट इज अ सर्विस दैट कंप्लीटली चेंजेस the way the industry operates and makes it very easy to use technology for people who are not technologically very savvy. माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया? माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि हमको सबके टेबल पे एक कंप्यूटर पहुंचाना. So their strategy was completely different. Their strategy was to provide a desktop at the lowest possible price ताकि लोग खरीद सके, यूज कर सके. आईफोन स्ट्रेटेजी वाज डिफरेंट. माय प्रोडक्ट इज अ डिफरेंशिएटर. मैं कम दाम में इसे बेचने नहीं वाला, मैं बेस्ट इंटरफेस दूंगा लोगों को और मैक्सिमम चार्ज करूंगा लोगों. बोथ हैव वेरी डिफरेंट मार्केट्स फॉर द सेम इंडस्ट्री. बोथ आर सक्सेसफुल, बोथ आर वर्ल्ड लीडर्स. So that is the importance of getting strategy right. अगर हमने हमारे विजन मिशन बराबर डिफाइन नहीं किए तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे ऑन द लॉन्ग टर्म. एक आध साल वी विल डू वेल, कंपनी भी शायद सस्टेन करेगी, बट इट इज नॉट गोइंग टू बिकम अ वर्ल्ड लीडर. हमको ये समझना है कि आज की दुनिया में अगर एक 10 आदमी का भी कंपनी हो, दे हैव टू बी एज इफेक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव एज अ वर्ल्ड लीडर. क्योंकि मार्केट्स आर ग्लोबल, टेक्नोलॉजी इज ग्लोबल, नॉलेज इज ग्लोबल. नॉलेज एंड द ओपन आर्किटेक्चर जो आज है हमारे सोसाइटी में, आप इंटरनेट पे चले जाओ, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. तो it makes the whole thing global. So we have to get our strategies, our vision, our mission, our values absolutely correct. ये अगर हम यहाँ पे अगर गलती हुई, so we will not be then in a position to compete, succeed over a period of time. Okay? और आप मुझे पूछोगे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, we still have to make a big jump. आप मुझे पूछोगे तो मेरा यही आपको कहना होगा. We have really not been able to develop technologies, develop products which are unique and world beaters.
इंडिया में बहुत बड़े बड़े कंपनी है, मना नहीं करता, आप आईटी सेक्टर में भी देखोगे तो वो क्या करते हैं, वो दूसरों का प्रोग्राम लेके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आपको रेयरली ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जो इंडिया में फुल्ली डेवलप्ड हो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टिल एक नॉलेज गैप है, एंड दैट नॉलेज गैप इज not a theoretical gap. It is about understanding what the customer wants, capturing that as an input to develop a product or service at a price which is acceptable to the client and deliver it flawlessly. Okay. आप इंडिया में बहुत बड़े बड़े आईटी कंपनी हैं, मैं मना नहीं करता हूँ, बट दे हैव बीन मोस्टली इनटू प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड कंसल्टिंग। हम ये जो गैप है ये हमको अभी स्टिल क्रॉस करना है, और ये हकीकत है। जितने भी इंडियन, ये साउथ एशिया या एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो हम बोलते हैं, यहाँ पे हर एक जो देश है या जो कंट्री है उसमें आपको ये एक चीज मिलेगा जो हम अभी तक कर नहीं पाए। नेक्स्ट स्लाइड। और उसका कारण बेसिकली ये है कि वी हैव नॉट गॉट दैट स्ट्रैटेजी स्टिल इन प्लेस। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको कुछ पूछना था? इवन हम इसमें चाइना में भी देखते हैं तो उन्होंने वही कॉपी पेस्ट करके तो देन अपनी इकोनॉमी को बूस्ट दिया। और जो ट्रू इनोवेशन वी कैन से कि जो कोई नया माइक्रोसॉफ्ट या उस तरह की नया आईफोन का अल्टरनेटिव, ये चीजें तो हमें वेस्ट से ही आ रही हैं। तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। Yes, and the 10% ratio which is being shown on slide is really alarming. देखिए, नहीं, लेकिन I will tell you one more thing. You know, I was listening to a strategy person, and strategy means he talks about national strategies and military strategies and strategic analysis and all that. So he said something which has really caught my imagination. आप पूछोगे तो, आप बोलोगे तो, it has caught my imagination. और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इतना ही बोला कि there is difference between a developed country and the underdeveloped and the developing countries. और इंडिया पाकिस्तान सब डेवलपिंग कंट्रीज है। फर्क क्या है? फर्क इतना ही है कि डेवलप्ड कंट्री में इन्वेस्टमेंट लोगों पे किया जाता है। डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में लोगों पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। You will not get the same quality of education. You will not get any of those benefits when you are in a developing country. And this is what differentiates a developed country from the other countries. आप एक फिनलैंड जैसा कंट्री में चले जाइए जो इंडिया या पाकिस्तान का कोई शहर से भी छोटा होगा इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु स्टे देयर। 50 लाख होगा शायद पॉपुलेशन, 50 लाख भी नहीं होगा। आप वहाँ पे देखिए कितने वर्ल्ड बीटिंग टेक्नोलॉजीज वहाँ से डेवलप हुए हैं, वर्ल्ड बीटिंग कंपनी वहाँ से डेवलप हुए हैं। It is something that we all need to think as to why it is the case. Okay, next. This is another very interesting slide. ये contribution of intangibles. तो intangibles और tangibles में फर्क क्या है? Tangibles वो चीज होते हैं, या आप सबको शायद मालूम भी होगा, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम खरीद। These are hard things, like a car is a tangible. Okay, an organization is a tangible, a product is a tangible. Okay? When यहाँ पे एक स्टडी हुआ था कि न्यूयॉर्क मार्केट, स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज हैं, ओवर ए पीरियड दे हैव स्टडीड कि टैंजिबल और इंटैंजिबल में what is the value addition that comes to the stock price. So 1975 में 83% of the value of a stock was tangible. उसके फैक्ट्री क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है, ये सब टैंजिबल्स 83% डिटरमाइन करते हैं।
टुडे अगर आप S&P 500 का जो इंडेक्स है उसमें जो कंपनीज हैं आज, ये 2015 का डेटा है मेरे पास, आप उसमें देखोगे तो फैक्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दिस ओनली कंट्रीब्यूट 16% of the value. 84% of the value comes from intangibles. तो intangible में क्या आता है? ब्रांड आता है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आता है, ओके, और जो सॉफ्टवेयर साइड है ऑर्गेनाइजेशन का वो आता है. What is the competency of the people that work with them? What is the value that the company holds on to? What ethics they have in doing business? Whether they deal with the stakeholders in a fair way? ये जो सारे चीजें हैं which has to do with the quality of human resource and quality of human capital that the company employs gives it 84% of the share value. मामला पूरा बदल गया है 40 साल में. वी कैन से अगर हम इसको देखते हैं, इंटेंजिबल ने मार्केट शेयर भी कैप्चर किया, प्रॉफिटेबिलिटी में भी उतना कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है. तो दैट्स मीन दिस इज लाइक सॉफ्ट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जैसे Yes, सिविल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, दिस इज ए सॉफ्ट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Yes, you are very correct. This is the soft side of organization which actually gives the value addition. ओके, थैंक यू. इसका कारण क्या है? इसका कारण है, आप अगर आज से आप 40 साल पहले कोई स्टील कंपनी में जाते थे तो उनका एक फैक्ट्री होगा जहाँ पे 50,000 लोग काम करते होंगे. आज आप वही फैक्ट्री में जाओगे तो आपको जिनके 2,000 2,500 लोग मिलेंगे. तो क्या हुआ है? सब कुछ ऑटोमेट हो गया. पहले जो फिजिकल लेबर होता था वो सब ऑटोमेटेड हो गया. ओके, डेटा कैप्चरिंग जो होता था वो सब ऑटोमेटेड हो गया. तो लोग क्या करते हैं? लोग वैल्यू ऐड करते हैं, उनको ये जो ऑटोमेटेड सिस्टम चलाना आता है. So quality of manpower is much superior, and Even- it is critical. It is this people who सबके पास सेम इक्विपमेंट है, लेकिन प्रोडक्टिविटी डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि जो लोग हैं they are able to, how well they are using the technology is what makes a difference. And even we can say the share ratio of intangible is increasing day by day, and COVID is also is a major factor. अभी चूंकि मल्टी स्किल्स की बात हो रही है और फ्यूचर में सर्वाइवल अगर जॉब्स की बात करें तो वो मल्टी स्किल्स के साथ ही है, इसलिए हमें नंबर ऑफ वुमेन एक तो मल्टी स्किल है. दूसरा, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है वहीं पे आपको लोग लगेंगे. जहाँ पे रिपीटेटिव नेचर है काम का, जहाँ पे रिपीटेटिव नेचर है, everything will get automated, including making an affidavit in court will get automated. Right, you're right. So that is the trend, and this graph reflects that very well. Next. This is ये जो रिपोर्ट है ये इंडिया रिपोर्ट है. मेरे पास पाकिस्तान का ऐसा कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं है, इसलिए मैं सोचा वी आर कल्चरली ऑलमोस्ट द सेम, सो दिस विल बी टू एन एक्सटेंट applicable for Pakistan also. Whole Indian subcontinent it will be applicable more or less. तो ये क्या बोल रहा है? हम जब रिव्यू किया गया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, 92% बोलते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का काम ये है कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करे. ठीक है. 12% बोलते हैं सिर्फ कि हमारा जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है वो इफेक्टिवली कर रहा है. मतलब गैप आप देखिए, ओनली 12% ऑफ द कंपनी मैनेजर्स आर सेइंग कि उनका जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है वो इफेक्टिवली कंपनी की परफॉर्मेंस को सपोर्ट करता है. मतलब
88% ऑफ द केसेस में ये सपोर्ट करता ही नहीं, और एटलीस्ट इट इज नॉट सेटिस्फाइड। 52% बोलता है कि हम चेंज करने की प्लानिंग कर रहे हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। 16%, and this is very, very important, 16% have done away with all forms of individual rating. आप हम ये सेशन शुरू करने के पहले बात कर रहे थे ना कि बेल कर्व क्या करना चाहिए। So these 16% of the companies or the people who have been surveyed have already thrown away the bell curve. और ये recent data नहीं है, ये I think it is 2012 का डेटा है, 2012 या 2014। लेकिन इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं आई होंगी। उसकी रीजन कि अभी तक, जैसे अभी हम आगे बात चल के करेंगे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो भी शायद 12% या कुछ ज्यादा को होगी। वो मेजॉरिटी तो सिर्फ अप्रेजल को समझते हैं कि यही एक कंप्लीट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का साइकिल है। करेक्ट। I agree with you. We should proceed further to next slide. Next slide. अच्छा, what are the factors? मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये आप शेयर भी कर सकते हो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप पीपीटी शेयर करोगे। तो what are the factors that make PPT ineffective? मैनेजर्स बोलते हैं, मैनेजर्स के लिए क्या इनफेक्टिव बनाता है? मैनेजर्स एबिलिटी और विलिंगनेस टू हैव डिफिकल्ट कन्वर्सेशन विद इंडिविजुअल्स। परफॉर्मेंस कन्वर्सेशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट कन्वर्सेशन फॉर एनी मैनेजर। ओके, चाहे वो 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 30 साल का एक्सपीरियंस हो, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। सो 60% ऑफ द मैनेजर से इसके वजह से हमारा पूरा सिस्टम ही इनफेक्टिव बन जाता है। उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो बोलते हैं कि हमारे एक्सपेक्टेशन क्लियरली डिफाइन नहीं होते। आज डिफाइन करते हैं एक, रिवॉर्ड करने के समय दूसरे किसी चीज के ऊपर रिवॉर्ड होता है, अप्रेजल होता है। सो दे आर अनहैप्पी, 90% आर अनहैप्पी। थर्ड है प्रोसेस के में ही प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव है नहीं प्रोसेस। तो ये तीन वजह से विच गोज टू द कोर ऑफ पीएमएस हमको प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट स्लाइड। So what is performance? Performance is a ratio, हमने क्या प्लान किया था और क्या हुआ, ये रेशियो को परफॉर्मेंस बोलते हैं। दूसरा है व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये दोनों एक नहीं है। सिस्टम डज नॉट मैनेज परफॉर्मेंस, इट ओनली रिकॉर्ड्स परफॉर्मेंस। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। मैं काफी मैनेजर्स से मिलता हूं जो बोलते हैं कि अरे ये काम नहीं हो रहा है, बंदे को बहुत बंदा करता नहीं है, इसके KRA में डाल दो, काम हो जाएगा। नहीं होता है। जहां पे मैनेजर्स इस तरह, जो भी मैनेजर इस तरह से बात करेगा, हमको ये समझना है कि he has not understood the performance management process and he is confusing between a performance management process and performance management and performance management system. एवरी डे जो सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में डिस्कशन होता है कि कल क्या करना था, कितना हुआ और आज क्या करने वाले हैं, और कहाँ पे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आ रहे हैं और उसके बारे में क्या करना है, ये जो होता है डिस्कशन, दिस इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ आउटपुट्स और स्टेटस को रिकॉर्ड करता है। और वी कैन से कि इसका एक सिंगल इंडिविजुअल के साथ जो है उस पे डिपेंडेंसी नहीं है इसकी। ये अलग प्रोसेस है, अलग प्रोसेस। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज ए कंप्लीटली इज द प्रोसेस। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ डेटा को कैप्चर करता है, क्या करना है, क्या हो रहा है, इसको कैप्चर करता है। So appraisal process is just capturing the data.
एंड हैविंग ए डिस्कशन कि क्या होना था, क्या गैप है। लेकिन डिस्कशन जब होता है हम तब कोई कलेक्टिव एक्शंस नहीं ले पाते, क्योंकि जो होना था हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को या परफॉर्मेंस सॉरी अप्रेजल को तो बस वो लिंक विद उसके कंपनसेशन के जो है ज्यूम कर लिया गया है, दैट इज मेंट फॉर कंपनसेशन ओनली। तो लेट्स सी आगे दैट इज चलते रॉन्ग, हैं दैट इज हाउ। रॉन्ग। यस, एक्चुअली आप मुझे पूछोगे तो एक्चुअली अप्रेजल का कॉम्पनसेशन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन होना नहीं डेटा चाहिए, लेकिन वो अप्रेजल का नहीं, जो क्या है, व्हेन वी आर डिसाइडिंग अप्रेजल, सॉरी, इंक्रीमेंट्स एंड सैलरी फिक्सेशन, उसमें हजारों चीज है जो उसको इन्फ्लुएंस करती है। ओके, उसमें से अप्रेजल एक छोटा सा पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, अगर हमारे पास एक आदमी बंदा काम कर रहा है जो मार्केट वैल्यू से काफी कम है उसका सैलरी, अगर उसका एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस है, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस होने की जरूरत नहीं है, आई मे हैव टू गिव हिम ए 50% करेक्शन, दैट हैज नथिंग टू गॉट टू डू विद द अप्राइजल एज सच, क्योंकि अदरवाइज द मैन विल लीव एंड गो, और मुझे नया बंदा ढूंढ के निकालना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा, उसको कंपनी में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसमें 6 महीने निकल जाएंगे। So it makes more sense for me at that point in time to give him a higher salary, retain him in the company, because his work is acceptable. I'm giving you a very simple example. Okay? So we have to be very careful to what extent the appraisal data can be used for salary fixation. ये आप सबको मालूम होगा, सैलरी फिक्सेशन में काफी सारे इश्यूज आ जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें मैं दो ऐड करूं। फॉर एग्जांपल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी, नेशनल इकोनॉमी, आपका रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, डिमांड एंड सप्लाई जिसको बोलेंगे, फिर उसी की वो मार्केट वैल्यू, जैसे आपने कहा मार्केट वैल्यू ही बढ़ गई है, तो हम न्यू हायरिंग के बाद जो हायर एज देना है उसको हाई कॉस्ट पर हायरिंग करनी है, तो इसी एग्जिस्टिंग रिसोर्स को आउट ऑफ टर्न जो है वो एक अच्छा पैकेज ऑफर कर दिया जाए, सो दैट हम अपना वो चेंज का कॉस्ट भी बचाएं और एक नया आदमी ट्रेन करते हुए अपना टाइम भी बचाएं। करेक्ट, करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। तो व्हाट इज स्ट्रेटेजिक एचआर मैनेजमेंट? इसका एक सिंपल डेफिनेशन ये है कि जब हम इंडिविजुअल एम्प्लॉय अचीवमेंट को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ अलाइन करते हैं, उसको स्ट्रेटेजिक एचआर मैनेजमेंट कहते हैं। आई थिंक क्लियर, और फर्दर स्लाइड्स में इसको फर्दर हम देख लेंगे, क्लैरिटी मजीद आ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। Now we are right now proceeding on performance management system. नेक्स्ट स्लाइड। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहां पे एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स एक साथ काम करते हैं ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। वी आर नॉट एनिमीज, वी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल। ये पहली चीज है। हेल्प्स एस्टेब्लिश अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपेक्टेशंस। हमें क्या अचीव करना है, ये जो एक्सपेक्टेशन है इसको शेयर हो जाता है। सबऑर्डिनेट एंड बॉस आर सपोज्ड टू बी ऑन द सेम अलाइन। कोचिंग और डेवलपमेंट यूज किया जाता है ताकि लोगों का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। रिव्यू और फीडबैक टू फर्दर इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड मीट एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे मैंने लिखा है फीड फॉरवर्ड, क्योंकि फीडबैक का एक ही काम होता है, और वो ये होता है कि ये आइडेंटिफाई करना कहाँ पे हम एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर रहे हैं, और वो मीट करने के लिए क्या करना है फ्यूचर में। फीडबैक का ये एक ही काम होता है, लोगों को डोज देना, सबक सिखाना, रास्ते पे लाना, ये सब फीडबैक का काम नहीं है।
लेट अस अंडरस्टैंड। फीडबैक जो होता है बहुत, क्या बोलते हैं, झगड़े का इशू बन जाता है बिटवीन सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, पर्टिकुलरली जहाँ पे परफॉर्मेंस अचीवमेंट के परसेप्शन में फर्क है। अगर हम रिपीटेडली करेंगे, पीरियोडिकली करेंगे, हर महीने करेंगे, तो ये सब इश्यूज निकल जाएंगे। फाइनली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो डेटा होता है वो हम रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। पीरियोडिक और फ्रीक्वेंट फीडबैक जो है ये तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट में भी बड़ा काम दे सकता है। देता है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम है of the whole system. I'm not going into it in details because ये आप सबको मालूम है क्या है। नेक्स्ट स्लाइड। विजन, मिशन और वैल्यूज पे हम करेंगे, लेटर पार्ट में बात करेंगे, उस पे मेरे एक दो क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है। अभी ये सारे स्टेप्स हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्टेप्स, ये हमको समझना है। विजन और मिशन हमको बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जिंदा रहने का कारण क्या है, पर्पस क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। वैल्यूज हमें बताती है हम जो कर रहे हैं ये सही है कि गलत है। ऐसा ना हो कि लोग काम करते करते मर गए, हमने ध्यान ही नहीं रखा, या ऐसा ना हो कि मार्केट में हमने ऐसे बेचा और इस तरह से बेचा कि कस्टमर को नुकसान हो गया। ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज इज व्हाट हेल्प्स अस स्टे ट्यून टू द नीड्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स, जिसमें एम्प्लॉयज भी आते हैं, इन्वेस्टर्स भी आते हैं, कस्टमर्स भी आते हैं, अपना लीगल सिस्टम भी आता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि ये तीन चीज पे बेस करके हमको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है, हमको क्या करना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको माइक्रोसॉफ्ट का और एप्पल का। बेस्ड ऑन द मिशन एंड विजन हमको क्या करना है और हम इसको कैसे करेंगे। हम वाई आ गया। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है क्या करना है, हमको डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाना है कि सुपर कंप्यूटर बनाना है, ये हमको ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, एसबीओ गोल से मालूम पड़ता है। अगर ये गोल्स एलोकेट करने के लिए हमको बजट्स नहीं मिलेंगे तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। पुटिंग द मनी वेयर आवर माउथ इज, वॉकिंग द टॉक, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक कंपनी में काम करता था, यहाँ पे मुझे लिया ही गया था ट्रेनिंग के लिए और बोला गया कि आपके पास बजट नहीं है लेकिन आप ट्रेनिंग करो। ओके, दैट ट्रेनिंग विल नेवर बी इफेक्टिव। इंडिविजुअल गोल, उसके बाद एक बार जब ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आ गए, एसबीओ गोल्स आ गया, डिपार्टमेंट गोल्स आ गया, फिर उसको इंडिविजुअल गोल्स पे ट्रांसलेट करना बहुत जरूरी है। फिर पीरियोडिक रिव्यू, करेक्टिव एक्शन, और फाइनली इसका जो रिजल्ट आता है पूरा साल में, इसको हम रिवॉर्ड और एप्रिसिएशन के लिए भी यूज करते हैं। तो दीज आर द स्टेप्स, और ये ईच स्टेप हमको क्या करने में सपोर्ट करता है। दिस चार्ट गिव्स अस दैट। नेक्स्ट। अब स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन में दो चार चीज हमको ये समझना पड़ेगा। मेरा पहला क्वेश्चन सबको है कि आप जहां पे भी काम करते हो, आपके कंपनी का मिशन क्या है, विजन क्या है, वैल्यू क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है। आप बोल सकते हो, आपको याद है क्या? स्ट्रैटेजी की अवेयरनेस, ये सारे चीज की अवेयरनेस हर एक एम्प्लॉय को रहना जरूरी है। इसके बिना पीएमएस सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। अगर ये मैं कर रहा हूँ, क्यों मैं कर रहा हूँ, इसका कारण क्या है, मुझे जानना जरूरी है। और ये सही है कि नहीं, अगर मुझे जानना है तो मुझे ये भी जानना जरूरी है कि हमने अपने कंपनी का वैल्यूज क्या है, एक। दूसरा,
ये करने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए, जो बजट्स चाहिए, जो वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट चाहिए, ये हमारे पास है क्या? अगर नहीं है तो लोगों को देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो लोगों को मालूम भी हुआ ये 4 चीज नहीं सक्सेसफुल होगी, उसके लिए हमको ये देना पड़ेगा। थर्ड, हम सही चीज को मेजर कर रहे हैं क्या? आप अगर फाइनेंस इंडस्ट्री में जाओगे, ये सबसे बड़ा चीज है फाइनेंस इंडस्ट्री का, ये आप सेल्स में भी आपको ये मिलता है। सब बोलेंगे कि हमारा स्ट्रैटेजी क्या है, हमारा वैल्यू क्या है, कस्टमर को बेस्ट वैल्यू देना, समझ में? लेकिन प्रमोशन देने के समय हम किसको देते हैं? जिसने सबसे ज्यादा बिजनेस जनरेट किया। ये मिसमैच बहुत कॉमन है। So, are we putting the eggs in the basket that we claim is the basket? ये जानना बहुत जरूरी है। लास्ट, इंडिविजुअल्स को ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ कैसे लिंक करते हैं, कैसे अलाइन करते हैं, ये जानना जरूरी है। ये 4 चीज होंगे तो ही सक्सेसफुल होगा पीएमएस इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट। एग्रीड। इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है अवेयरनेस, उससे आज ही एक लाइव एग्जांपल मेरे बड़े अच्छे दोस्त, उनसे जब मैंने इसी सेशन का फ्लायर शेयर किया, देन ही रिस्पोंडेड के दिस इज मोर रिलेटेड टू एचआर एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो उनके लिए आज ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो मेरा उनको ये रिस्पॉन्स था कि इसी मिथ को तो आज हमने ब्रेक करना है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम या स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन ये इसके क्लाइंटेज जो है ये अक्रॉस दी कंपनी है, ये सिर्फ नॉट ओनली दैट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एचआर नहीं करता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में होता है। वो चाहे एचआर का हो, फिनेंस का हो, मैन्युफैक्चरिंग का हो, कहीं का भी हो, अकाउंट्स वाला हो, स्टोर्स वाला हो, कुछ भी हो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हर समय सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में होता है। एचआर नहीं करता है। एचआर फैसिलिटेट करता है डेटा कोलेक्ट करना, कैप्चर करना, ये हमको समझना है। एचआर फैसिलिटेट करता है जहाँ पे स्किल गैप्स है, कॉम्पिटेंसी गैप्स है, ये सब एचआर फैसिलिटेट करता है। लेकिन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में ही होता है, पीरियड। इसमें एचआर का कोई रोल नहीं है। That was my response. Today we will. Very correct. Next slide. I responded him कि आज हम इसी मिथ को ब्रेक कर रहे होंगे। तो आप the way you are proceeding कि एक conceptual एक बिल्कुल फाउंडेशन से उठा के आप ऊपर लेके जा रहे हैं। तो this is we have today great learning. So proceeding towards next slide. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के 3 बेसिक आपके चीज है। एक है गोल सेटिंग, राइट फ्रॉम मिशन विजन टू ऑर्गेनाइजेशन गोल्स टू कैस्केडिंग देम टू द इंडिविजुअल्स। ये हो गया गोल सेटिंग आपका। दूसरा है एनवायरनमेंट टू परफॉर्म। हमारा एनवायरनमेंट लोगों को परफॉर्म करने देता है कि नहीं देता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबऑर्डिनेट और सुपीरियर का रिलेशनशिप कैसा है, ट्रस्ट है कि नहीं है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट को डेलीगेट करता है अथॉरिटी डिसीजन लेने के लिए कि नहीं करता है, या उसको हर चीज जाके साहब को पूछना पड़ता है। अगर उसको हर चीज जाके पूछना पड़ता है तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बराबर नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट नहीं होगा। थर्ड, फीडबैक और लर्निंग गोल्स क्या है। हम लर्निंग गोल्स के बारे में बात ही नहीं करते ज्यादातर कंपनीज में, एटलीस्ट इंडिया में तो यही कंडीशन है। तो लर्निंग गोल्स भी डिसाइड करना पड़ेगा। और सुपीरियर का काम है फैसिलिटेट करना, सीखने वाला तो सबऑर्डिनेट ही है, लेकिन सुपीरियर का काम है उसको फैसिलिटेट करना। नेक्स्ट। तो ये गोल सेटिंग थ्योरी की तरफ लेके चलते हैं। गोल सेटिंग में अगर आप जब गोल सेट करते हो
पहला तो गोल स्पेसिफिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम स्मार्ट गोल्स बोलते हैं। गोल्स शुड बी स्मार्ट, दे शुड बी स्पेसिफिक, दे शुड बी प्रिसाइज। उसके बिना गोल सेटिंग इफेक्टिव नहीं होता। सेकंड, गोल डिफिकल्टी। ये डिफिकल्ट होने चाहिए, चैलेंजिंग होने चाहिए, बट इतने भी डिफिकल्ट नहीं होने चाहिए कि लोग कर ही नहीं पाए। अगर गोल डिफिकल्ट नहीं है तो मोनोटोनी सेट हो जाएगा, people will not be motivated and inspired to achieve those goals. जो मैंने लास्ट ईयर किया है, मुझे अगर वही करने को बोला गया तो मुझे वो एक्साइटमेंट नहीं होगा अचीव करने में। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सटेंड टू विच बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी दे दिया तो भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज गोल एक्सेप्टेंस। लोगों को गोल एक्सेप्ट करना चाहिए। दे शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ रीजनेबल गोल, मे बी अ स्ट्रेच गोल, बट इट कैन बी रीजनेबली अचीव। अगर लोगों को ये लगा कि ये अचीव ही नहीं होगा, आज तक कभी हुआ ही नहीं, आज हम इसके आधा से भी कम कर रहे हैं और आप बोल रहे हो इसको आप 100-200% बढ़ाओ, नहीं होगा। लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे और जो हम एक्सेप्ट नहीं करते वो हम करते ही नहीं। हम हजार बहाने ढूंढेंगे ये बताने के लिए कि हो नहीं सकता। तो एक्सेप्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, परफॉर्मेंस फीडबैक टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। साल के एंड में लोगों को अगर बोलेंगे कि आपने काम बराबर नहीं किया, कोई मतलब नहीं है, वो उससे डीमोटिवेशन होता है। नेक्स्ट, सेम चीज है ग्राफिकल, इसमें हम दिखा रहे हैं। नेक्स्ट, गोल शीट जब हम बनाते हैं, ईच गोल जो हम देते हैं KRA शीट में, हमको ये सारे चीज उसमें इंक्लूड करने चाहिए। पीपल मस्ट नो कि वो जो काम कर रहा है वो कंपनी को कैसे हेल्प करता है। तो हमको SBU गोल ऑब्जेक्टिव देना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव देना चाहिए। शायद दोनों एप्लीकेबल नहीं होंगे, एक एप्लीकेबल होगा या दोनों एप्लीकेबल होंगे, तो वो देना चाहिए। उसके अगेंस्ट में लिखना चाहिए ये ऑब्जेक्टिव का मेजर क्या है, मुझे इसके लिए क्या करना है, और कंपनी का जो इनिशिएटिव है परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का, वो क्या है जिसके जो मैं ये करूं तो फुलफिल होगा। देन देयर इज एन अलाइनमेंट। लोगों को ये समझ में आता है कि मैं फालतू का काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे काम कर रहा हूँ कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जाके मोटिवेशन आता है लोगों को काम करने के लिए। तो ये सारे जो कॉलम है और रोज है, ये सारे फिल होने चाहिए। और 4-5 से ज्यादा अचीवमेंट गोल देना नहीं चाहिए लोगों को। मैक्सिमम 4 या 5 ऐसे देने चाहिए जिसके अचीवमेंट होने से 80% ऑफ द काम हो जाएगा। नेक्स्ट है लर्निंग गोल। एवरी ईयर वी वांट टू डू बेटर देन लास्ट ईयर। ये तभी होगा जब हम कुछ चीज नए करेंगे या कुछ चीज पहले बार से बेहतर करेंगे। तो हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमें क्या सीखना है। पूरा फाइनेंशियल ईयर है, उसके पहले 2-3 महीने में हमको क्या सीखना है। जो हम सीखेंगे तो रेस्ट ऑफ द ईयर आवर परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी बेटर। ये करना है, पूरा साल करना है। फर्स्ट क्वार्टर हो गया, सेकेंड क्वार्टर के लिए हमारा क्या लर्निंग है, तभी कंटिन्यूअस लर्निंग होता है। अगर हमने 2 लिया साल के पहले में, उसके बाद भूल गए, तो कंटिन्यूअस लर्निंग नहीं होगा। नेक्स्ट, आज का जो परफॉर्मेंस यास्टिक है वो ये है कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और टेक्निकल एक्सपर्टाइज इज टेकन फॉर ग्रांटेड। आपने 4-5 साल काम कर लिया, 2 साल भी काम कर लिया, तो वो टेक्निकल एबिलिटी आपके पास है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आपके पास है। तो किस चीज के लिए हम टेस्ट करते हैं? हम टेस्ट करते हैं थिंग्स लाइक इनिशिएटिव, परसुएसिवनेस, अचीवमेंट ओरिएंटेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
ये जो सारे चीज है इसको हम इमोशनल कॉन्फिडेंस बोलते हैं, इमोशनल एंड सोशल कॉन्फिडेंस बोलते हैं। रिसर्च शोज कि इमोशनल एंड सोशल, अगर आप बेस्ट परफॉर्मर्स को देखेंगे, दे आर वेरी स्ट्रांग ऑन दीज इश्यूज, एंड इट इज दीज इश्यूज दैट मेक गिव सुपरलेटिव परफॉर्मेंस। तो इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, दो तरह के गोल्स होते हैं गोल शीट में, एक होता है परफॉर्मेंस गोल, दूसरा होता है लर्निंग गोल्स। डॉक्टर आशीष इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इंडियन एक्सपर्ट्स ऑन दीज इश्यूज। तो ये उनका खुद का डेफिनेशन है। परफॉर्मेंस गोल्स है जो हमें करना है, लर्निंग गोल्स है जो हमें सीखना है, जिसके सीखने से हमारा गोल अचीवमेंट इंप्रूव हो जाएगा। तो गोल शीट में सब समय 2 लर्निंग गोल्स रहने ही चाहिए अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है। नेक्स्ट, सेकंड, हमने बोला था ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्या है, कैसा है ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट कैसा है। तो ऑर्गेनाइजेशन में 2 चीज होता है, एक कल्चर होता है, एक क्लाइमेट होता है। कल्चर होता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, और क्लाइमेट होता है एक टीम में, एक डिपार्टमेंट में, एक सेक्शन में। आप कोई भी कंपनी में जाओगे, आप देखोगे कि हर एक डिपार्टमेंट टीम का क्लाइमेट अलग है। ठीक है, वो क्लाइमेट डिटरमाइन होता है बिटवीन द सबऑर्डिनेट एंड द सुपीरियर्स का रिलेशनशिप क्या है, क्या फ्रीडम देता है, कितना इंकरेज करता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को ग्रो करने में, डेवलप करने में। ये जो सारी चीजें हैं, ये क्लाइमेट और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का सेट करते हैं। ये जो 2 चीज है, दिस इज ए रिलेटिव एंड्योरिंग क्वालिटी एंड इंटरनल, ये जो है ये एंड्योरिंग होता है ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक्सपीरियंस करते हैं लोग, इससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और उसको डिफाइन किया जा सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है अगर हमको टीम परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है। 30% of performance of a person is impacted by the culture and the climate. और एक ऑर्गेनाइजेशन में you will get teams having very good climate, which is helping them to achieve great heights in performance, and there will be teams जहाँ पे लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं, there will be teams जहाँ पे लोग जल्दी छोड़ के जाते हैं। All these are indicators that climate in the team is poor. और अगर हमको परफॉर्मेंस बढ़ाना है लोगों का, तो क्लाइमेट चेंज करना पड़ेगा। सुपीरियर को हमको अवेयर करना पड़ेगा कहाँ पे वो गलत है और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। गलत है तो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इंप्रूव करना है, कैसे इंप्रूव करना है। नेक्स्ट, दैट्स मीन के कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्रॉडर सेंस में वी कैन से कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी रेपो कैरी कर रही होती है। विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट क्लाइमेट, यानी ये जैसे आपने टीम, सेक्शन, डिपार्टमेंट वाइज का, तो देयर आर मेनी कल्चर्स वी कैन से कि देयर पीपल आर फेसिंग डिफरेंट एनवायरनमेंट, वर्किंग अंडर डिफरेंट एनवायरनमेंट, दैट माइट बी गुड और बैड। करेक्ट, करेक्ट। लीडर्स हैव टू बी वेरी कॉन्शियस एंड अवेयर अबाउट द कल्चर दे आर क्रिएटिंग। एनवायरनमेंट टू परफॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं? फर्स्ट, देयर शुड बी एन एनवायरनमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड। वी शुड बी थैंकफुल that we are working in a team, we are helping each other. Superior has to be thankful, the subordinate also has to be thankful, and colleagues have to be thankful. Create a safe environment. घबराहट नहीं होना चाहिए to express their views. Superior accept करे नहीं करे वो अलग बात है, टीम accept करे नहीं करे अलग बात है, पर उसको घबराहट नहीं होना चाहिए बोलने के लिए कि अरे ये बोलूंगा तो नौकरी चले जाएगी। Then people will not contribute, people will not be creative, people will try to avoid losing their jobs than to perform.
थर्ड, इंक्रीज पॉजिटिविटी, एलिमिनेट नेगेटिविटी। सब समय पॉजिटिविटी हमको इम्प्रूव करना है, ये करेंगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यहाँ पे होता है। आप मुझे पूछोगे, मेरा 25-30 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, ये जो 6 पॉइंट्स हैं, दी आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पे परफॉर्मेंस सक्सेसफुल करते या अनसक्सेसफुल करते। मुझे जिसने एचआर सिखाया है वो मुझे बोलते थे कि सक्सेस एंड फेलियर आर सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज अबाउट पीपल। एक बंदा एक टीम में, एक कंपनी में सक्सेसफुल होता है, दूसरे टीम में, दूसरे कंपनी में अनसक्सेसफुल होता है। बंदा तो एक ही है। देयर इज नो रीजन व्हाई दैट शुड हैपन, बट होता है। तो ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। अगर हम किसी को सक्सेसफुल कंसिडर करते हैं तो सक्सेसफुल हो जाता है। अगर हम किसी को समझते हैं कि ये बेवकूफ़ है, इसको काम करना आता नहीं है, तो वो फेलियर हो जाता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ आज, क्योंकि उसके ऊपर ही 2 घंटे 4 घंटे की डिस्कशन हो सकती है। नेक्स्ट, डिपार्टमेंटल क्लाइमेट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, और ये 6 पॉइंट बिल्कुल उस क्लाइमेट को ही उसके नर्चरिंग में काम कर रहे होते हैं। और एक जगह मैं पढ़ रहा था कि अगर ड्यू टू पुअर कल्चर और वी कैन से क्लाइमेट, अगर पीपल स्टार्ट अवॉइडिंग स्पीकिंग, दैट इज डिजास्टर फॉर ऑर्गेनाइजेशन। कि वो अपना ट्रू इनपुट नहीं दे रहे, अपनी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, वो खामोश हो चुके हैं कि आगे से उनको नेगेटिविटी फेस करना पड़ेगी या कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। फोकस ऑन व्हाट पीपल कैन डू, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप एक आदमी को पकड़ के पूरा दिन गालियां दीजिए कि तेरे को ये करना नहीं आता है, क्या करता है तू, बेवकूफ है, इट डज नॉट हेल्प। लेकिन आप उससे ये बात कीजिए कि आप क्या कर सकते हो। वी आर इंटरेस्टेड इन दैट, that everybody is interested to prove that he can achieve things in life. Next. Basically, these are small steps, but these can contribute that can actually create impact. Sir, these are not small steps. These are the steps that decide whether the team and the individual is going to be successful to achieve the goals that have been kept or not. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं ना, हमको सबको मालूम है हमको क्या एनवायरनमेंट में काम करने को मजा आता है। वी मस्ट ensure that we are doing that in the teams that we are working. इतना ही बात है। Next is feedback. Feedback is a two-way process. It is not a one-way process कि superior बोलेगा subordinate सुनेगा. It is a two-way process. It can happen between a subordinate and superior. Subordinate can give inputs to the superior. Inputs can be shared within the team among peers. ये सारे तरीके से होता है। It is about evaluating work. It is not to fix blame. Please understand, feedback is not to fix blame. Feedback is to fix what is not happening. ये दोनों में फर्क है। Exploring ways to improve performance. कहाँ पे अटक रहा है, हम इसको कैसे improve कर सकते हैं। This should be the only thing that is discussed in a feedback session. हम जो इमोशनल बात करते हैं फीडबैक सेशन में, इट डज नॉट हेल्प, ये लोगों को रोकता है। नेक्स्ट, फीडबैक में सबको बात करना चाहिए, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। पहले के साइड अर्लियर स्लाइड, एक पॉइंट अर्लियर स्लाइड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अ फीडबैक प्रोसेस एंड व्हेन एवरीबडी शुड लिसन। Listen to understand, not to prove that they are right. होता क्या है फीडबैक सेशन में, everybody is trying to prove that they are right, whatever has happened. We have to avoid that trap. Next. ये एक चेकलिस्ट है। It has to be frank, communication has to be constructive, visit goal sheets, track performance, identify challenges. These are the things that the employee should do.
actively complete goals, particularly learning goals and development goals, active participation in midterm reviews or any review for that matter. Next. लीडर्स को क्या करना है? सेम चीज करना है, बट सबको सपोर्ट करना है टू एंश्योर दैट सबऑर्डिनेट्स कैन अचीव देयर गोल्स. His job is to ensure that people are achieving their goals, not to do anything that will become a hindrance in people performance. He must know to appreciate. हम लोगों को ये बोलते रहते हैं कि क्या नहीं हुआ, क्या करना है बहुत कम बोलते हैं. We must focus on what needs to be done. We must focus on what needs to be learned so that he can do it. We must be a coach. अगर मैं आपको पूछूंगा अभी कि आप 10 दिन पहले क्या खाए थे लंच में, आप बता नहीं पाओगे. लेकिन अगर मैं आपको पूछूं आपका नाम क्या है, आप बता पाओगे. उसका कारण एक ही है कि हम जब छोटे थे तब हमारे जो भी पेरेंट्स थे और जो भी एल्डर थे हमसे, हमको 1000 बार ये पूछा है कि बेटा तेरा नाम क्या है बता. तो हम 1000 बार 10,000 बार बोल बोल के ये इंग्रेंड हो गया है कि मेरा नाम ये है. अगर ये मुझे सुबह ये बोलते थे 10,000 बार कि मेरा नाम सुब्रत तो नहीं है, मेरा नाम राजेश है, तो मैं यही सीखता था कि मेरा नाम राजेश है. Okay? So coaching is very important. Leaders have to be coaches. और हम ये करते नहीं हैं. हम ऑफिस में मेनी टाइम्स सबऑर्डिनेट को मुंह खोलने नहीं देते हैं. बट वी डोंट हैंडल अवर चिल्ड्रन द सेम वे. We are very loving with them. We don't have to be that loving with our subordinates, but at least let us allow them to speak their mind. Let us hear them with an open mind. Let us treat them as our equals, as our colleagues who have come to perform, who also wants to enjoy the work. Performance, one of the most important things is to enjoy the work that we do. काम से अगर एंजॉयमेंट निकल गया तो काम होगा ही नहीं. हमारे फीडबैक सेशन में हम ये पहले ही भूल जाते हैं. काम नहीं होता है तो पहले बोलते हैं इसको आज मैं सिखाता हूँ कैसे काम करना. इट डज नॉट वर्क. एक बार काम होगा, 2 बार काम होगा, तीसरा बार पीपल विल कम, दे विल लिसन टू अस, गो आउट एंड फॉरगेट. अरे ये तो सब समय ऐसी बात करता है बॉस, छोड़ो यार बॉस का क्या सुनना. We have also done it with the bosses who have been unnecessarily treating us badly. हम भी किए, वो भी करते. So let us also learn from our experience. Next. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए ये 5 चीज करना जरूरी है. फर्स्ट, एंड देयर हैज टू बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द सबऑर्डिनेट एंड द सुपीरियर. पहला काम क्या है? काम क्या है. दूसरा क्या है? परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या है. किस क्वालिटी का, क्या क्वांटिटी का होना चाहिए, ये एकदम क्लियर होना चाहिए एंड एक्सेप्टेड बाय बोथ द साइड. क्या अच्छा हो रहा है, क्या इम्प्रूव करना है. फीडबैक का फोकस यही होना चाहिए. फीडबैक का फोकस ये नहीं होना चाहिए कि गलत क्या हुआ, क्यों हुआ, किसको पनिश कर सकते. दैट इज नॉट फीडबैक. रिवॉर्ड फॉर डूइंग इट वेल. अगर आप अच्छा करोगे तो क्या रिवॉर्ड क्या मिलेगा. और ये मॉनिटरी रिवॉर्ड होना का जरूरत नहीं है, ये नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन भी हो सकता है. What more needs to be learned to reach my potential? अगर मेरे एम्प्लॉय को उसका पोटेंशियल रीच करना है तो उसको क्या सीखना पड़ेगा, ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. ये 5 चीज अगर हम डे टू डे बेसिस पे करेंगे तो परफॉर्मेंस अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं. That means performance management system is all about positivity. इसके अंदर जो है अपॉर्चुनिटीज को ही एक्सप्लोर करना है और पोटेंशियल को
मौका देना है, और जहाँ पे कोई लैकनेस ऑब्जर्वेशन है उसको ट्रेन करना है हमने, जैसे पहले हमने एक स्लाइड में बात की है। देखिए, इट इज ऑल्सो अबाउट एबिलिटीज। मुझे जो करना आता है मैं वही कर सकता हूँ। हम्म, मुझे जो नहीं आता है, अब मुझे तैरना नहीं आता है, आप मुझे बोलोगे पानी में कूद के तैरो, मैं पानी में कूदूंगा ही नहीं, हम्म, मैं 10 बहाने निकालूंगा। हम्म, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। परफॉर्मेंस इज अबाउट व्हाट पीपल कैन डू, हम्म, it is not about what people cannot do. हम्म, Feedback is about what people can do, what people can do better, and what people can learn to do. हम्म, ये 3 चीज है परफॉर्मेंस फीडबैक में, और कुछ नहीं है। होता क्या परफॉर्मेंस फीडबैक में, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, किसने नहीं किया, किस पे ब्लेम फिक्स कर सकते हैं, ये होता है समटाइम्स, एंड दिस इज वेरी बैड फॉर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट। जी प्लीज। थैंक यू। So we Yes. have So completed we have over. exceeded our time, but we will for 15 minutes. Any questions we will take. Yes. Uh, Let me change I the hope screen. I hope I was clear and my Hindi was understandable. Yes, basically, Hindi and Urdu are identical. ज़्यादा फर्क नहीं. People, Yeah, very people good. Yeah. in your country use some word of Sanskrit, and we in Pakistan we use in a few words of Persian language and Arabic language Correct. in Urdu. These are the Correct. basic difference, and otherwise this is the common language. Same. Yeah. So. Yes. Uh, your presentation was wonderful. We have learned a lot, and the way you have presented and prepared your presentation was truly inspiring. Because आप ग्रेजुअली evolve करके लेके तो एक ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे और हर बंदे को बता दिया इंडिविजुअल को आपका ये रोल है, ये करना है. That was a impressive way of we can say teaching or training. Thank So, you, sir. Thank you so much for your kind words. so let's start taking comments. Ayaz Ali is with us. He's saying, what is the relation of competency dictionary with PMS? It is very important. एक स्लाइड था जहाँ पे we discussed about what we should learn. Okay. It is the behavioral competencies and the social competencies that give superlative performance for any individual. ये समझना बहुत जरूरी है. डेविड कोलमैन का जो किताब है इमोशनल इंटेलिजेंस, if you read that book, research shows that individual performers, जिसको कोई रिपोर्ट नहीं करता है, उसका भी 60% and more performance impact comes from the emotional competencies. Managers to whom people are reporting, it is between 80% and 100%. It is emotional competencies that give superlative performance. आपको टेक्निकल एक्सपर्टाइज और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज जरूरी है, बट इट इज एट द एंड, आप अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो या बना रहे हो, इट इज टू सेटिस्फाई अ कस्टमर. ओके, ये जो सारे हमारे जो टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज हैं और हमारे जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं, दे वर्क इन एन environment or in a world where people are interacting and to serve the people and their needs. Okay, so at the end, अगर हमको ये समझना है कि मेरे कस्टमर को क्या चाहिए, you require and we require emotional and social competence to have that discussion with a customer and understand what he wants.
It is true for everybody in the organization, because every other individual in the organization is an internal customer to an employee, or they work together. Even if I am an individual performer, I am part of a whole amount of work. I work in a context. So I will be effective in that context only as good as my emotional and social competence. और इमोशनल और सोशल कॉम्पिटेंस में आप मुझे पूछोगे तो दो स्किल फंडामेंटल है. पहला स्किल है सेल्फ अवेयरनेस. जो चीज मुझे समझता ही नहीं है और जो मैं जानता ही नहीं हूँ और जिसके बारे में मैं सेंसिटिव ही नहीं हूँ, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता. दैट इज फर्स्ट. तो पहले तो मुझे सेंसिटिव बनना पड़ेगा. दूसरा है सेल्फ रिस्ट्रेंट. मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैं जो बिहेव करता हूँ सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट होगा. ये दो चीज फंडामेंटल है. अगर ये तो चीज हम समझ गए, रेस्ट ऑफ द कॉम्पिटेंसीज वी विल बी एबल टू पिक अप. देयर इज नो प्रॉब्लम. I think the answer is very much clear. Ayaz Ali is very active member in our SIRP forum. Very good. Very good. And the next the whole feedback, ये जो पूरा फीडबैक का जो प्रोसेस है, it is only and only emotional and social competencies that come to work. वहां पे ना तो अपना इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज की जरूरत है और ना ही अपना टेक्निकल कॉम्पिटेंस. It is primarily 90% about emotional and social competence. Next comment is Ms. Rifat Mumtaz Jafri saying sorry for late joining, had a joining. It's fine. आप इसको वीडियो को देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, ये फेसबुक पे अवेलेबल है. Then Mr. Shahid is saying wonderful session. Shahid is also very much active in HR and labor field, and we can say he is considered as a hub of IR knowledge and labor laws. He is considered as authority in origin. Oh, very good. Malik Abdul Qayyum Raza Sahab is also with us. He is saying thanks for invitation. Thanks for attending, Malik Qayyum Sahab. He is also senior HR and administration related person. Isbai is saying excellent. Thank you. Thank you. This is the question by Mr. Sageer Ahmed Chauhan. I think its comment, it is true that performance is determined between seniors and juniors, but it is the responsibility of HR is to review the performance of all employees in an organization to ensure the merit and discourage the discrimination. It is not HR's job to review. It is HR's job to facilitate. दोनों में फर्क है. देखिए, ये हमको समझना है. परफॉर्मेंस नहीं होता है. इशू सबऑर्डिनेट का भी हो सकता है, इशू सुपीरियर का भी हो सकता है. ओके, एंड बोथ हैव टू इवॉल्व. Our job is to facilitate that evolution. Our job is not to run the department that we are talking about. It is that department or the team leader's job to run his team or his department. Our job is to facilitate that process. We don't review anything. We only facilitate. होता क्या है? Today what is happening is, और पीपल से कि जो आदमी है एचआर में, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि एचआर में वही बंदे को भेजा जाता है जिसको सुपीरियर डील नहीं कर पाए, विच इज ओके. बट एचआर में वही आदमी आना चाहिए जिसका डिसिप्लिनरी इशूज है. वन. सेकंड, एचआर में तभी लोगों को आना चाहिए जब हमने गैप्स आइडेंटिफाई किए हैं in terms of what is it that the employee or the team leader needs to learn and master. Yes,
Once that is done, our job is to help identify the resource, ensure that those skills are imparted. That is what our job is. Thirdly, our job is to see that once that knowledge has been imparted, it is getting translated in terms of behavior at the place of work. क्योंकि at the end, what is the definition of learning? मैं जब MBA पढ़ता था, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में एक डेफिनेशन दिया गया था और मैं आज भी कहता हूं कि दैट इज द ओनली डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, एंड दैट इज द लॉन्ग टर्म चेंज इन बिहेवियर. जब तक बिहेवियर में चेंज नहीं होता है, लर्निंग नहीं हुआ है. Classroom learning does not give the knowledge. It only gives the knowledge. It does not give the skill. That is the difference between a surgeon who is operating and the MD who is giving the certificate that patient can undergo operation. Or a cardiologist saying that referring the patient to a cardiosurgeon to do the operation. As far as medication is concerned, the cardiologist has the skill. He delivers. But he does not have the skill when it comes to doing a surgery. So skill is what we can do. Competence is the behavior we display. Okay? हमारा काम है इसको फैसिलिटेट करना. हमारा काम रिव्यू करना नहीं है. हमारा काम हम रिव्यू करेंगे. हम रिव्यू करेंगे बिहेवियरल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज में कहाँ पे गैप है, वो हम रिव्यू करेंगे. उतना ही हमारा काम है. और सुपीरियर का रिव्यू करेंगे, सबऑर्डिनेट का नहीं, क्योंकि एक बार सुपीरियर को वो स्किल एंड कॉम्पिटेंसी मिल गया है, देन ही विल बी एबल टू डील विद हिज सबऑर्डिनेट्स. I think you have explained very briefly. In my view, Mr. Chauhan's comment is more related to, we can say, grievance handling or redressal management system. That is true. जैसे yes, that is true. आपने बोला कि उसका डिपार्टमेंट के अंदर रिड्रेसल नहीं हो रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं है, देन there must be a window where he can approach to HR. See, there again, it is grievance handling. One. Second, as HR, our job is to know and to make it clear to the superiors as to what are the policies that are applicable, and that once it is applicable, it has to be applied to everybody uniformly. Yes. वो करना हमारा काम है. I fully agree with you on that. Yes, जब बंदा कोई इंडिविजुअल जो है HR को अप्रोच कर रहा है, दैट इज आल्सो एन इंडिकेशन कि उस टीम, उस डिपार्टमेंट के क्लाइमेट के ऊपर थोड़ा सा रिव्यू की जरूरत आ गई है. क्योंकि अभी हमने उसको सुपरलेटिव परफॉर्मेंस और उसके अंदर जो लीडरशिप ट्रेट्स हैं, आज उसको टच नहीं उस तरीके से हम कर सके. तो वो बेसिकली उसके ऊपर फिर काम करने की जरूरत है कि गैप आइडेंटिफिकेशन है बेसिकली किसी का अपनी टीम से बाहर HR को अप्रोच करना, और उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, उसको प्रोटेक्शन भी देनी चाहिए, सेफ एनवायरनमेंट देना चाहिए, सुनना चाहिए और मैक्सिमम पॉसिबल रिलीफ उसको देना चाहिए, और उसके बाद उसकी टीम के अंदर काम करने की जरूरत है. I agree. I completely second what you are saying. What you are saying is completely correct. Sagir Saab is saying, thank you so much for updating knowledge. Thank you, sir. Thank you. Thank you for attending. Ayaz is saying, still I am here. Thank you, Ayaz, for being with us. And Rifat Mumtaz Jafri Saiba is saying, engagement and developing performance management has to be valued across the whole organization, that the top leadership has to consider critical to achieve goals and objectives. The values that have been discussed have to be given high importance. I agree. मैं सच में ये बोलता हूँ लोगों को कि आप देखेंगे आर्म्ड फोर्सेस में the only thing that makes them deliver, including giving their lives, is that they are standing by two things.
One is the values. Okay, कोई भी आर्म फोर्स ले लीजिए आप, एक तो है वैल्यूज. वैल्यूज आर वेरी क्लियर. Violations of values are normally not tolerated. Okay, ये एक चीज है. दूसरा, all of them are given purpose which is higher than individual purpose. That is what engages them, and that is true for all organizations. Values, we can say, are the way of living life in organization. Yes, These are the values is what allows us to decide what is an acceptable behavior, what is an unacceptable behavior, and this is value. these are basically rule of game for running organizational business. We can say. Yes. That's all from our comment box on SIRP page, or I have some more questions through WhatsApp or other medium. Uh, I would draw attention on the importance of mission and vision in achieving great performance. Although this was part of our presentation, but उस पे उतना हम बात नहीं कर सके, वो जस्ट एक बुलेट की शक्ल में आया. और मिशन और विजन, इसकी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी और उसके ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट के ऊपर थोड़ा सा शेयर कीजिए अपने व्यूज. देखिए, बात ये है कि आपने मुझे गोल दे दिया, ठीक है, मुझे ये करना है, मैं क्यों करूं? कैसे मिल रहे हैं करके? मैं क्यों करता हूं? ये दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. मैं इसलिए करता हूं कि मुझे जिंदा रहना है. ओके, for that I need food to eat, I have basic necessities, I have a family, I need to care about my family. That becomes my personal vision. Okay, when I come to work in organization, if the organization tells me, well, you will do this because it is not just that you are getting paid, but when you do this, this is the way we are impacting society by providing them some benefits or certain things to provide where the society benefits from it. Okay, that adds meaning to the work we do. Otherwise, there is no reason why I should be doing that. Okay, मुझे अभी भी याद है मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में काम करता था. Okay, and I found that people, very successful people, they could have become business heads, but they don't want to become business heads. They want to do the project manager's job. Okay, and in fact, they are senior to the business head, and business head tell them, "अरे साहब, ये आप जरा करके दो मुझे." So when I started talking to them and started asking them कि बस आप लोग बिजनेस के में क्यों नहीं जाते हो? बोलते देखो, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, हम कहाँ जाते हैं जहाँ पे कुछ नहीं है, या तो जंगल के बीच में, रेगिस्तान के बीच में, जहाँ पे कोई नहीं जाता वहाँ पे हम जाते हैं. And by the time we move out from here, we have created businesses, we have provided a bridge which was allowing people to go and come, we have improved the life of people. ये जो हम देखते हैं ना कि हम 2 साल यहाँ पे थे, 3 साल यहाँ पे थे, हमारे काम करने से लोगों को कितना बेनिफिट हो रहा है, बस हमें और क्या चाहिए? Infrastructure is one of the toughest places where people work, and this is one of the reasons why you see some of the best people going and doing the tough job, जहाँ पे रहने का कोई ठिकाना नहीं है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है, पानी का भी मिलता है पीने के लिए, कभी नहीं मिलता है, but you will see these brilliant people going there and doing the job. Why? Because they have this satisfaction कि हम जब यहाँ से निकलेंगे, we have improved the lives of people. ये जो sense of doing things much bigger than what I need, this is the only thing that has made society
go from hunter-gatherers to today. It is individuals who have been driven by this who have helped bring us here. Mission and vision allows us to do that. Properly framed gives us the reason, gives us the meaning to the job. Hence, it is important. That's mean organizations must have plan or a complete program to cascade their vision and mission to the bottom level, Absolutely. Absolutely. so that they can Absolutely. relate their work with the organizational vision and mission. See, that is one part. The other part is हम value बोलते हैं. As an organization, we should be able to define कि ये वैल्यू का ये बिहेवियर है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट में क्या बिहेवियर है. सही है. So we have to define that also. Mission, vision and value are extremely important. आप मुझे कोई भी सक्सेसफुल एंड रेस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन दिखाइए जहां पे मिशन, विजन और वैल्यू नहीं है. दुनिया के कोई भी देश में चले जाइए, कोई भी कंपनी, बड़ा छोटा जो भी है, जो भी कंपनी रेस्ट्रिक्टेड है, उसमें ये तीन चीज होंगे ही होंगे. Agreed. And some words I want to listen from your side about superlative performance. हमने परफॉर्मेंस के ऊपर तो बात की. आप एक टर्म यूज करते हैं सुपरलेटिव परफॉर्मेंस, जो आज के सेशन के अंदर क्योंकि हम उसके ऊपर उतना फोकस नहीं थे, तो फ्यू सेंटेंस शेयर कीजिए कि सुपरलेटिव परफॉर्मेंस और एक रूटीन परफॉर्मेंस के अंदर क्या फर्क, कैसे इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं? Superlative performance is about taking goals which are believed by most of the people it is not possible to achieve and then going and achieving it. Excellent. आपने उसको अगर यहाँ पे भी हमने डिस्कस नहीं किया था, तो इवन देन यू आप उसको हम यहाँ एक मुहावरा बोलते हैं कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया. तो मैं आपको एक ही बोलता हूँ, मैं मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि आप जब कुछ करने जाएंगे विच इज सुपरलेटिव, आपको लोग बोलेंगे ये हो नहीं सकता. That is a sign of superlative. That is a sign of something that normally people will not take on. Okay. Now we have crossed almost. Oh my God! It's 27 minutes past now. So, any take a break. हाँ, बोलिए. Any last question I will answer. I have covered almost all questions. Few are identical, which we have already discussed. And now I want to give you mic for few moments. अगर हमने कुछ मिस किया है, कुछ आप समझें इस सारे को सम अप करने के लिए, crux of session, now you can share your views on this. देखिए, मैं ये बोलूँगा कि इसमें we have not touched jobs, we have not touched roles. Okay. When we have a vacancy, we give a job description. Okay. किसी दिन मौका आया तो अलग से बात करेंगे इसके बारे में. But the job description tells us what are the various processes that the position will be responsible for. Okay. The KRA tells what is the goal that we want to achieve. Okay. But they don't give performance. Performance comes from the softer side. This softer side is what we need to focus. उसमें क्या आता है? उसमें आता है इंटेलेक्ट, उसमें आता है टेक्निकल कॉम्पिटेंस, उसमें आता है बिहेवियर कॉम्पिटेंस. अगर हमारे पास इंटेलेक्ट और टेक्निकल कॉम्पिटेंस है, we will do a good job, but we will not do a superlative job. For superlative job, the only differentiator is
behavioral competence. Excellent. So we need to focus on behavioral competence. We need to tell people that they can. Human capability का कोई end नहीं होता. There is no limit. We need to give people the confidence and support them that you can achieve things that you believe you cannot achieve. That is when superlative performance happens. देखिए हजारों साल पहले लोगों को चांद जाना था, 1000 साल लग गए, but that aspiration and that belief was always there कि हम चांद में जाएंगे, and we ended up reaching the moon. Yes. It is the ability to hold on, to take on goals that we may find we cannot achieve or people say cannot be achieved, focusing on that and achieving it. That is what performance management is about. All great organizations do that in their own way. Okay? And we have to do that. We have to believe in our abilities. We have to see where the gaps are, and we have to close those gaps by having continuous learning, so that it is these learnings that allow us to achieve the goals. It is not the JD, it is not the KRA. Those are the guidelines. Those are the milestones. Okay. KRA is a milestone, and the job description is the road that is going. पर गाड़ी तो अपने को चलाना है. जो गाड़ी चलाने का जो skill है, that is what brings out the performance. इसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं. Yes, you are right. You are right. आपने अभी जॉब डिस्क्रिप्शन का जिक्र कर दिया. मेरे पास मैं वो देख रहा था 4 क्वेश्चंस इसके जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है, बिकॉज दैट वाज नॉट आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे. मैं आपको एक सजेस्ट करूं, आप ना एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाइए जिसपे हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके. इसमें मैं 2 घंटा रख लीजिए, वी विल टॉक. ओके. इसमें मैं जस्ट जी बस शेयर कर देता हूं ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन जाए. एक क्वेश्चन है मेरे पास, कैन एम्प्लॉय डिस्क्राइब देयर जॉब्स. इसमें जो व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग ही वांट टू से एक यूजुअली डिपार्टमेंट्स में होता है कि हेड ऑफ एचआर की पोजीशन चेंज होती है और वो आते हैं, एक नया फॉर्मेट आता है जॉब डिस्क्रिप्शन का, सबको ईमेल चला जाता है. एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को कहा जाता है अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन लिखें. जॉब डिस्क्रिप्शन जो है दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. वो तो बंदे से पहले इसको एग्जिस्ट होना चाहिए तेरे ख्याल से. सर देखो होता क्या है, मैं आपको बोलता हूँ, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में अनफॉर्चुनेटली इवन एचआर पीपल, मेरे में भी ये अंडरस्टैंडिंग नहीं था. ये लास्ट 10 साल में मेरा ये अंडरस्टैंडिंग आया है, बिकॉज आई वाज फॉर्चुनेट टू वर्क विद सम पीपल हु हैड ए वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज इट. ओके. और बिजनेस हेड्स को भी ये समझता नहीं है. एचआर के लोगों को भी समझता नहीं है. उससे भी खराब हालत बिजनेस हेड्स के हैं. Okay, so this when somebody joins, and I am very open on that, ये हो सकता है कि इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं. आप मुझे पूछोगे तो एक एस्पेक्ट ये है कि when somebody joins he wants to make an initial impact. Most of the organizations में things are not aligned from vision to goal delivery. Okay, तो वहां पे आप कुछ भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता. लेकिन आपका ये अलाइनमेंट है तो ये करना बहुत मुश्किल है. इट इज नॉट दैट इजी टू चेंज द जॉब डिस्क्रिप्शन. एट द सेम टाइम आई विल आल्सो टेल यू कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर माय जॉब डिस्क्रिप्शन इज ए. बाय द एंड ऑफ द ईयर माय जॉब डिस्क्रिप्शन इज ए प्लस और माइनस है अल्फा. इट इज नेवर द सेम. अगर वो करेक्शन हो रहा है तो ठीक है. We need to review the jobs every year, or in some cases maybe every 6 months, depending on the nature of the job. And this should be reviewed by the team leader, unit leader, section, department leader, not by an individual. Even the HR. Even this review should also be done by HR. That is the only core competence that we have, understanding a job.
हमको ये अच्छा, नहीं देखना है कि उनको डिप्लोमा इंजीनियर चाहिए या डिग्री इंजीनियर चाहिए. That is not HR competence. HR competence is how does it fit in with the vision, mission, values, organization strategies, the behavioral requirement of the organization. कहाँ पे fit होता है? होपफुली जो हमने स्टार्टिंग में रेशियोज शेयर किए 12% से ऊपर जाएगा फिगर ये नियर फ्यूचर में. प्रेजेंटली तो हमने खुद ही शेयर किया कि ये अभी कोई अराउंड 12% ये चीजें चल रही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, डू एम्प्लॉइज अंडरस्टैंड एंड हैव एक्सेस टू व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू नो? Do employees understand and have access to what they are expected to know? Maybe the सर मैं एक चीज आपको बोलता हूँ. मैं जब यंग था, मैं हर इंटरव्यू में कैंडिडेट को पूछता था कि आपने लास्ट किताब कब पढ़ा है आपके सब्जेक्ट. Employee should know, but employee also has a responsibility to learn and stay updated. हमारा काम है ये अवेयरनेस जनरेट करना लोगों में. वी कैन नॉट स्पून फीड, बट ये अवेयरनेस जनरेट करना, वी मस्ट प्ले आवर रोल. एक लॉ में भी बड़ा सेटल्ड प्रिंसिपल है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. देखिए, कॉलेज और जॉब में फर्क ये है कि कॉलेज तक लोग हमको बोलते हैं क्या सीखना है और हमको सिखाते हैं. बट वंस यू आर इन ए जॉब, नोबडी विल टेल यू व्हाट यू नीड टू लर्न. नोबडी विल टीच यू अनलेस यू गो एंड आस्क. तो वो इनिशिएटिव हर एम्प्लॉय को लेना, सेल्फ इनिशिएटिव हमारा लेना काम है है. उसका अवेयरनेस. मैं तो बोलता हूँ यंग इंजीनियर्स, मैं जब इंडक्शन करता था इंजीनियर्स का, मैं उनको बोलता था जिंदगी में एक चीज समझो, जैसे आप खाने के लिए पैसा रखते हो, बजट बनाते हो, किताब के लिए बजट बनाओ, सो दैट यू डोंट गेट आउटडेटेड. एग्रीड, एक्सीलेंट. नेक्स्ट था मेरे पास, डू एम्प्लॉइज नो इफ दे आर विनिंग और लूजिंग? ये आई थिंक हमने की बात के फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होनी चाहिए. जॉब अप्रेजल या परफॉर्मेंस अप्रेजल को एनुअल इवेंट ना रखा जाए. देखिए, मैं आपको एक छोटा सा चीज बोलता हूँ. एम्प्लॉय इज विनिंग और लूजिंग. इफ यू टेक एन एम्प्लॉय हु इज हैप्पी डूइंग हिज जॉब, 99% of the time he is winning. Right. So we must add this question: is he enjoying his job? If he is enjoying, 99% of the time he is winning. Enjoying or satisfaction are the same thing? No. How can differentiate? Does an employee get up in the morning looking forward to going to work and believing that he is going to have a great day? That is enjoying. And difference with satisfaction? Yeah, हम जाएंगे, काम करेंगे, बस at the end of the day I am okay. आज दोबारा वही दिन आ गया और आज फिर जाके उसी तरीके से वापस आना. That is satisfaction. Let's see आज दिन, let's see. और डिससेटिस्फैक्शन है मुझे यार कहाँ पे, और डिससेटिस्फैक्शन है अरे यार कहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये कोई जगह है काम करने. Let's see, इसमें ये भी होता है. People usually say कि आज एक दिन आ गया, let's see how a day behave with me. Correct. Last question was, do employees get the feedback they need when they need it? A repeated question है. No. मैं आपको बोलता हूँ क्या होता है. एम्प्लॉयज को इमीडिएट फीडबैक तभी मिलता है जब कुछ नहीं हुआ. Employee should get a feedback when he has done something right. We very rarely say you have done a good job. ये बोलना, शाबाशी देना बहुत important है. It is more important than telling a person you have not done a job.
मुश्किल भी होता है समटाइम टीम लीड्स के लिए। मुश्किल नहीं है, शाबाशी देने में कोई मुश्किल नहीं है, हैबिट डेवलप करने की जरूरत है। हैबिट डेवलप करने की जरूरत है। सो प्रोसीडिंग ये टुवर्ड जो हम बोल रहे थे ना ग्रैटिट्यूड, हम ग्रैटिट्यूड का बात कर रहे थे ना, दिस जी इज बिल्कुल। गिविंग अ पॉजिटिव फीडबैक, हम्म इट इज अबाउट गिविंग पॉजिटिव फीडबैक। ओके। Now proceeding towards closure of this session, inbox में एक comment आया, I thought कि करते हैं कि from Mr. Chauhan, thank you Rai Sahab and our distinguished guest for holding a very good session. I need to thank all of them for coming and attending the session, and you particularly for organizing and inviting me for the session. We will with mutual efforts will hold and conduct more sessions Sure. as you have already given consent. Yes. I am grateful to you. So I It's think my pleasure. The pleasure is completely on my end. it's honor for us to have you in our shows. I think we should proceed for close. We have discussed all our agenda. We have taken all comments and discussed and covered all points which we have decided to discuss. So, on behalf of SIRP team and myself, we thank you for taking the time for talking with us. We appreciate you spend time with us discussing performance management system, and contribution from your side was a wonderful. We have enjoyed, we have learned, we value the insights and guidance you have shared. And from participants' point of view, I am also observing their comments are showing basically that I should also say thanks on behalf of all of them that because you are today with us, and we have learned a lot from your research, your years of experience, and in-depth knowledge on performance management system. And in future, we will try to take you on board on job description, and like you have started your career from IR advisory and IR role, we want to have you to listen your experiences, how IR work in your region and what you have experienced. And we also observed IR is with the passage of time is we have observed its minimized role, we can say. We will discuss in our any next session about the factors Sure. which are causing Sure. the decreased role of IR. And I am sure you also have enjoyed, and the time spent will be I have. you have time spent will be considered as valuable time as well. No, I have, to be very honest, I have extremely enjoyed, and I am extremely humbled that you have invited me for this session. It was an excellent session. At the end, people all over the world are the same. Exactly. They have the same benefits. They require the same needs. They have the same expectations on life. So people are all over the same. Culturally, there are variations. Variations in the way it is expressed. That's the only thing that changes. But the core needs are the same. And it was a great session. I enjoyed completely. And thanks for inviting me. It's been an honor to be here and interact with all of you. Once again, thank you very much, and Thank you you are so much. always welcome. You are always welcome at our webinars, conferences, seminars, and at the end we will. I would say we will meet again and again. And stay safe and happy. And thank you very much. Okay, I would also want to inform the viewers that I have recently started my YouTube channel, Making Performance Achievable. Okay, if you can share one link with them, so they can also see the type of thing that I'm covering in that
channel. I will share link of channel in comments of this Sure. video session. Sure. And now we are closing the window. Thank you very much. Yes. Thank you. Thank you so much. Namaste.